بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. CS506 ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیکچر نمبر 10 میں آپ لوگ کو ویلکم. اچھا، آج ہم دیکھیں گے گرافیکل یوزر انٹرفیس. موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے آپ لوگ کا، تھوڑا لینتھی بھی ہے لیکن ہم شارٹ ٹائم میں اس کو انشاءاللہ کور کر لیں گے. تو دیکھیں گرافیکل یوزر انٹرفیس فرسٹ آف آل ہوتا کیا ہے. گرافیکل یوزر انٹرفیس وہ ہوتا ہے جس کو یوزر لائک دیکھ سکتا ہے. لائک ہمارے پاس یہ جو پیج اوپن ہے گرافیکل یوزر، اس پہ ہم دیکھیں ڈرا کا آپشن ہے، ہمارے پاس ایڈ ٹیکسٹ، ان پر جب میں کلک کرتی ہوں تو میرے پاس ایکشن پرفارم ہوتے ہیں. تو یہ ہے ایک جو ویژول انٹرفیس ہے میرے سامنے، پروگرامر کے سامنے، وہ اس کو کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس. ٹھیک ہے، لائک میں یہاں پر آپ کو ایک اور ونڈو اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس انسرٹ کا آپشن، ہوم کا آپشن، پیج لے آؤٹ کا، تو یہ سارے کیا ہیں، یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے جو آپ کے سامنے ایک بٹن کی فارم میں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کلک کر کے اس پہ کام کر سکتے ہو اپنا. تو یہاں پر بھی سیم یہی بتایا ہوا ہے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہوتے ہیں وہ لائک کس کی طرح ہوتے ہیں، بٹن، مینیو، لیبل، ان سب میں رہ کے آپ اس کے اندر جو کام ہوتے ہیں اس کو ہم کس کی مدد سے پرفارم کر سکتے ہیں، ماؤس اور کی بورڈ کی مدد سے. مطلب ماؤس اس پہ لے کے جاؤں گی، پھر اس پہ کلک کروں گی تو باقی بھی جو کام کرنا ہے یا پرفارمنس کرنی ہے تو اس کی ہیلپ سے کر سکوں گی. تو یہ ہمارے پاس چھوٹا سا ویو ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کا. اب اگر میں بات کروں سپورٹ فار گرافیکل یوزر انٹرفیس ان جاوا، کہ جاوا کے اندر کیا ہے، تو یاد رکھنا کہ جاوا کے اندر جو ہے اس کو 2 پیکیجز میں کنورٹ کیا گیا. ایک ہے java.awt اور دوسرا ہے جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ پیکج. ٹھیک ہے، ان دو پیکج یعنی مین جو کمپوننٹ ہیں اس کے وہ یہ ہے جاوا کے اندر. java.awt کون سا ہوتا ہے، ابسٹریکٹ ونڈو ٹول کٹ ہے ہمارے پاس، اور جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ پیکجز. تو یہ دو مین امپورٹنٹ نیم ہیں، ان کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ دو جو پیکجز ہیں ہم یوز کرتے ہیں جاوا کے اندر اس کو. اور گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان دونوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گرافیکل جو جاوا کو ہے وہ پیکیجز میں جو کلاسیفائی کیے اس کو دو مزید پیکیجز کے اندر کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا. کیسے کیا گیا، اس میں ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کلاسز، نان گرافیکل یوزر انٹرفیس، گرافیکل یوزر انٹرفیس کلاسز اینڈ نان گرافیکل یوزر انٹرفیس کلاسز. ٹھیک ہے، تو یہ دو کلاسز ہیں ہمارے پاس. یہاں پر بھی اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا. اب فرسٹ ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کلاسز. اس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ویزیبل ہوتے ہیں، یہ یوزر کو آپ یعنی کہ پروگرامر ہے، یوزر ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ویو نظر آ رہا ہے، یہ بٹنز جو ہیں یہ سارے کیا ہیں، گرافیکل یوزر. یہاں پر جس پہ ہم کلک کریں ہمارے پاس ایکشن پرفارم ہو، تو یہ کیا ہے، یہ سارے گرافیکل یوزر انٹرفیس کلاسز ہیں ساری. ٹھیک ہے، جس پہ میں ماؤس لے کے جا رہی ہوں تو میں ایکشن کس کے ساتھ پرفارم کر رہی ہوں، ماؤس کی ہیلپ سے کر رہی ہوں. تو ویری سمپل یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہے یہاں پر. پھر اگر ہم بات کریں نان گرافیکل یوزر انٹرفیس کے بارے میں تو وہ کون سی ہوتی ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے کلاسز پرووائڈ سروسز، جو ہمیں کلاسز پرووائڈ کرتی ہے. لائک یہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے 20 سائز ہے، اس کی لینتھ ہے، یا یہ انسرٹ کی کلاس ہے، یا پیج لے آؤٹ کی کلاس ہے. میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر میں اس کی سائز 36 رکھ دیتی ہوں. اب میں ٹائپ کروں گی تو دیکھیں یہ 36 اس کی سائز لینتھی ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نان جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پرفارم ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم نان گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اوپر ہم ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ہم ریموونگ کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو گرافیکل ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پہلے سے بلٹ ان یا پریفکس ہیں ہمارے پاس، اس لیے اس کے اوپر ہم کچھ بھی ایکشن اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس چھوٹا سا ایک لیٹل ڈفرینس تھا اس کے اندر. اچھا، اس کی ایگزامپل امپورٹنٹ ہے، یہاں پر دیکھ لیں کہ اس کی ایگزامپل کون سی ہے. گرافیکل یوزر انٹرفیس میں جے بٹن، جے فریم، جے ریڈیو بٹن وغیرہ آ جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نان گرافیکل، اس کی ایگزامپل میں ہمارے پاس کون سے آ جاتی ہیں، یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس کی ایونٹ ہینڈلنگ وغیرہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ ہینڈل کرتے ہو، اس پہ لکھتے ہو کام جو بھی کرتے ہو، اور یہ لے آؤٹ مینیجر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر ہم بات کرتے ہیں java.aw پیکج. تو میں آپ کو سمپلی لفظ بتا دیتی ہوں، سمپل الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ AWT کیا ہے. ہمارے پاس دیکھیں ابسٹریکٹ ونڈو ٹول کٹ ہے. یہ کیا تھا، یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کے جو ہے وہ کمپوننٹ تھے، لیکن کب تھے، جو پرانا JDK تھا اس کے اندر یہ موجود تھے. ٹھیک ہے، اب نیو جو ہے وہ چینج ہو گیا، اس کو swing.x کے نام سے ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اس کے اندر یہ اولڈ ورژن تھا. اس میں اولڈ جو ہمارے پاس یعنی جب اسٹارٹ میں JDK ہمارے پاس ریلیز ہوئی تو اس میں جو فنکشن تھے، جو کلاسز تھی، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے بتایا کہ جاوا کے بارے میں یہ ونڈو، لینکس اور سولریس، یہ تینوں ایگزامپل اس میں بتائی ہوئی کہ اس پلیٹ فارم پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا اسٹارٹ میں. پھر ہم بات کرتے ہیں java.x سوئنگ پیکیجز. اب یہ کون سی ہیں، دیکھیں دیز آر دا نیوسٹ GUI کمپوننٹ. جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ اولڈسٹ، اب جو نیو ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، java.x سوئنگ پیکیجز.
स्विंग कंपोनेंट्स आर रिटन मैनिपुलेटेड एंड डिस्प्ले कम्प्लीटली इन जावा, कि जावा के अंदर जो क्या है ये कंपोनेंट जो है वो लिखे हुए मैनिपुलेट किए हुए बिल्कुल कम्प्लीटली, इसका लेआउट जो है वो आपके सामने आ रहा है। इसको दूसरा नाम कहते हैं जावा प्योर जावा कंपोनेंट, यानी जो जावा एक्स स्टार स्विंग पैकेज है इसका सेकंड नाम क्या है, प्योर जावा कंपोनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, अगर हम इसका देखें कि जावा डॉट AWT पैकेज को जो है वो ओल्ड नेम क्या था या नया दूसरा नेम क्या है, तो इसको भी यहाँ पर एक नेम दिया गया है। क्या कि ये आप ये बता सकते हैं कि ये ओल्ड जो था JDK के अंदर मौजूद था, ठीक है, यानी ओल्ड JDK इसको यूज कर रहा था, और इसको दूसरा नाम जो दिया गया था इसको हम क्या कह सकते हैं, हैवी वेट कंपोनेंट, HWC हैवी वेट कंपोनेंट। यानी वो स्टार्ट में तो काफी हैवी चीज था, मतलब उसको वेरिएंट में आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती रही तो उसको बड़ा स्मार्ट बना दिया गया था, ठीक है। तो ये जावा AWT पैकेज है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, HWC भी कहते हैं, यानी इसका सेकंड नेम। और इसका सेकंड नेम क्या है, प्योर जावा कंपोनेंट, जावा एक्स स्टार स्विंग पैकेज का नाम सेकंड नेम प्योर जावा कंपोनेंट है। तो ये दोनों नेम भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs एंड फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा लेआउट दिया हुआ है, यानी एक फ्रेम दिया हुआ है, किसका हमारे पास दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सुपर क्लास है या ऊपर सब सुपर क्लास है, फिर उसके कंपोनेंट है, उसके अंदर फिर कंटेनर है। कंटेनर किसको कहते हैं, कंटेनर वो चीज होती है जिसमें मल्टी चीजें रखी हो, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर जे कंपोनेंट भी है, और दूसरी साइड पे इसको देखो तो ये विंडो वाली साइड है जिसमें विंडो भी है, उसका फ्रेम भी है और जे फ्रेम भी है, और कंपोनेंट के अंदर उसके एब्स्ट्रैक्ट बटन है, जे बटन है और जे पैनल है। अब एक ये व्यू दिया हुआ है कि आपने क्लास बनाई, लाइक वो आगे हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, फिर उसके कंपोनेंट होंगे, फिर उसके कंटेनर्स होंगे, इसमें जो ऑप्शन होंगे ये विंडो वाली साइड हो जाएगी, और ये वो दूसरी साइड जहां पे इसके मल्टी फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो ये में एक फ्रेमवर्क उसका दिखा दिया गया। अब इस पे हम करते हैं JUI क्रिएशन स्टेप, कि हम उसको JUI क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप क्या करना है। सबसे पहले तो इसके लिए इंपोर्ट करने के लिए इसके जो हम कीवर्ड यूज करेंगे, या हम कह सकते हैं कि एक मेथड यूज करेंगे, वो ये हमारे पास देखिए import java.awt, और ये स्टैटिक का निशान देखिए, इसके अंदर AWT की जो सारे पैकेजेस हैं ना वो इसके अंदर मौजूद है, स्टैटिक के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं, जो इसके काम है इसके अंदर मौजूद है। एंड जावा एक्स स्विंग डॉट पैकेजेस, दोनों पैकेजेस को हमने ऊपर स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है। अब जो पैकेज हम यूज करना चाहेंगे उसको यूज कर लेंगे, लाइक हमने जावा एक्स स्विंग पे काम करना है तो जावा एक्स डॉट स्विंग, और स्टैटिक का साइन यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, इसका मतलब है इसके सारे जो काम है इसके अंदर तो वो इसके अंदर मौजूद होंगे फिर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेटअप द टॉप लेवल कंटेनर। टॉप लेवल कंटेनर को सेटअप का मेथड है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंटेनर क्या होता है, तो कंटेनर क्या होता है, हमारे पास कंटेनर कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। ये कंटेनर हमारे पास देखिए, जैसे हमने इस फ्रेम के अंदर देखा, यहाँ पर ये कंटेनर थे, तो इसके अंदर क्या है, देखिए सारे कंपोनेंट्स जो है वो कलेक्ट किए हुए, तो ये चीज होता है कंटेनर। सिंपली लफ्जों में अगर हम देखें कंटेनर क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट हम इसको कह सकते हैं, वो हमारे पास कंटेनर होता है। अच्छा, कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है कि 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन कौन सा है, ऐड, और सेकंड क्या है, सेट लेआउट, कि यानी ऐड करना है और लेआउट लेना है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें मेन जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं क्लासेस के, इसकी जो मेथड है उसकी क्लासेस में 2 आ रही हैं, एक ऐड है और दूसरा सेट लेआउट है। द ऐड मेथड इज यूज फॉर एडिंग कंपोनेंट, ठीक है, और सेट लेआउट ये क्या करेगा, लेआउट आपको देगा, ठीक है। इसी तरह ऐड करने वाला आपको ऐड करवाएगा, यानी आपने कोई फंक्शन ऐड करना तो आप ऐड का जो है फंक्शन यूज कर सकते हो, लेआउट के लिए लेआउट का। फिर उसके बाद है कंटेनर जो है वो क्लासिफाइड किए हुए, उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया हुआ है, टॉप लेवल में, सेकंड कौन सा है, जनरल पर्पज में। टॉप लेवल कौन सा होता है, टॉप लेवल में आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर काम कर सकते हो, लाइक आप ऐड कर सकते हो इन कंटेंट के अंदर, इसमें सारे इसके बेसिक कंपोनेंट आ सकते हैं, ठीक है। ऐड करने का मतलब है कि कोई बटन आपको दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करोगे और बटन में नंबर ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद जो है वो उसको ओके करोगे, तो ये हमारे पास टॉप होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारे पास सारी चीजें टॉप की आ रही होती है, इस कंटेनर के अंदर बटन आ जाता है, ठीक है, इसमें जनरल पर्पज हमारे सारे आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें जो टॉप के बाद कैटेगरीज में जनरल पर्पज था, जनरल पर्पज में कौन सा होते हैं, इसमें हमारे पास जनरली जो काम होते हैं सारे, ठीक है, यानी जनरल में हमने क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास हमारा जे फ्रेम आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वो सारे पैकेजेस, वो सारे काम जो है वो जनरल पर्पज के अंदर होंगे। तो टॉप लेवल और जनरल लेवल 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं इसकी, तो इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। फिर देखें, यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ भी है कि इसके में डायलॉग आ जाता है और जे फ्रेम वगैरह आ जाते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस कंटेनर जे पैनल, टूल बार एंड स्क्रॉल पैनल वगैरह है etc जो आपके सामने जनरल आम जो चीजें चल रही थी, लाइक ये चीज हमने इसको किया, इससे जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे। अब इसको जो है वो किससे परफॉर्म शो किया जाता है, कोड लैंग्वेज की दी हुई है, जे फ्रेम इक्वल है न्यू जे फ्रेम के नाम से। फिर हम बात करेंगे गेट द कंपोनेंट एरिया ऑफ टॉप लेवल कंटेनर। इसमें क्या होता है, गेट द कंपोनेंट एरिया ऑफ द टॉप लेवल कंटेनर। टॉप लेवल की भी बात की थी हमने, साथ दूसरी कौन सी की थी, जर्नल की। तो हम टॉप पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टॉप लेवल में क्या है। तो देखिए दिया हुआ कि ऑब्जर्व जे फ्रेम इज अ विंडो सो इट कैन इंटरप्ट द जे फ्रेम इज अ विंडो। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम ऐड नहीं कर सकते जे फ्रेम, यानी इसमें एडिशन मजीद नहीं कर सकेंगे हम लोग। जो काम कर रहे हैं वही होगा, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास टॉप लेवल पे जो किए हुए हमने, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, पहले से लाइब्रेरीज फिक्स होती हैं, तो हम इसमें मजीद लाइब्रेरीज को नहीं, क्योंकि उसकी कोडिंग ही पीछे ऐसे की होती है कि हम इसमें मजीद ऐड नहीं कर सकते जावा के अंदर, ठीक है, टॉप लेवल कंटेनर्स में। अब है एवरी विंडो हैज 2 एरियाज। ये मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसमें ये है कि मेमोरी की जो है वो 2 एरियाज है। फर्स्ट वन है सिस्टम एरियाज, सेकंड वन है कंपोनेंट एरिया। अब सेम वही बात है कि सिस्टम एरिया है तो इसका मतलब है इसको सिस्टम ही हैंडल करेगा, ठीक है, और कंपोनेंट एरिया है तो इसका मतलब है इसको हम इसमें एडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोग्रामर जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड भी नहीं कर सकता, रिमूव भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिस्टम का जो अपना ये व्यू नजर आ रहा है आप लोग को, इस पेज का व्यू, तो ये सिस्टम का अपना व्यू है, इसमें वो हम ऐड और चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कंपोनेंट एरिया की, तो ये जो पेज लिखा हुआ है तो ये कंपोनेंट एरिया, इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो देखें ये मैं ड्रा भी कर सकती हूँ, इसमें मैं मजीद ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है, ऐड टेक्स्ट की वजह से, ड्रा की वजह से, सारा कुछ इसमें मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये कंपोनेंट एरिया है, ये हमारे लिए बनाया गया है। और जो सिस्टम का एरिया है उसके अंदर हम एडिंग वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज था हमारे पास यहाँ पर। अब है अप्लाई लेआउट टू कंपोनेंट एरिया, कि कंपोनेंट एरिया में हम अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कैसे हमने अप्लाई करना है। लाइक मैं कंपोनेंट एरिया है, ये मेरे पास एक ये पेज, अगर मैं इसी CS 506 के हैंडआउट्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं न्यू ऐड कर सकती हूँ, तो ऐड न्यू करूंगी तो मैं यहाँ पर मजीद इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जावा के अंदर आप जब करोगे तो उसके लिए आप लोग ये चीज यूज करोगे, ठीक है, सेट लेआउट करने के लिए ये मेथड हमने यूज करना है, ठीक है। तो ये मेथड यूज करने के बाद हम क्या कर सकेंगे कि हम अपने जो कंपोनेंट एरिया है उसमें हम एडिंग कर सकते हैं। क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट, क्रिएट एंड ऐड कंपोनेंट, लाइक आपने कोई कंपोनेंट ऐड करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग जावा के अंदर जे बटन लिख कर न्यू बटन इक्वल ये न्यू मेथड यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, आप नया बटन उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने नया कोई बटन की जगह कोई नंबर ऐड करवाना है, कोई कुछ भी ऐड करवाना है आपने, तो उस प्रोग्रामिंग की मदद से आप लोग कर सकते हो। सेट साइज ऑफ फ्रेम एंड मेक इट विजिबल। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जावा का जो फ्रेम होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसका कोई साइज वगैरह अगर आप लोग उसका सेट करना चाहते हो तो साइज सेट कर सकते हो। लाइक हम जैसे HTML पे काम करते हैं तो हम किसी बटन का साइज फिक्स करना हो या एरिया का साइज फिक्स करना हो तो हम पहले उसको साइज बताते हैं कि इस चीज का इतना साइज रखना है और इसका इतना साइज रखना, या कोई टेबल बना रहे होते हैं तो हम उसमें बता देते हैं कि इसका साइज इतना आपने रखना है और इसका साइज इतना रखना है, तो उसके लिए हमें साइज बताना पड़ता है। सेम इसी तरह हम जावा के अंदर जब कोई टेबल बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, काम करते हैं, तो उसपे हम उसको साइज जो है वो उसे बता देते हैं कि ये चीज जो है वो आपने साइज इसके इतने रखना है, तो जितना जितना हम साइज बताएंगे तो इतना ही साइज बनेगा। मेकिंग अ सिंपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक सिंपल सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने है कि उस पर एक ही बटन है जिसपे उसके लिए जो है वो वर्क किया गया है, ये रिकॉर्डिंग की गई कि आपने किस तरह से सिंपल सा बटन बनाना है जिसपे आप क्लिक करो तो आपके पास परफॉर्म हो। तो इसके लिए कोड दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले कोड में क्या ऐड करना होगा, जावा AWT और जावा स्विंग दोनों पैकेजेस ऐड करेंगे तो हम इस पर काम कर सकेंगे, क्योंकि इन्हीं पैकेजेस की मदद से हम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी कोडिंग दी हुई है। अब है नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सेकंड। अब वो सिंपल था और ये सेकंड लेआउट मैनेजर है हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर इसमें है हमारे पास कॉमनली लेआउट जो मैनेजर्स हैं वो कुछ ये हैं हमारे पास, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, बॉक्स लेआउट, कार्ड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट।
अब देखें ये जो पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेआउट की हेल्प से। लेआउट किसको कहते हैं? लाइक मेरे पास ये हमारे पास है, मैं यहाँ से एक इंसर्ट करती हूँ टेबल को, ठीक है, तो मैंने ये वाला टेबल इंसर्ट किया, यहाँ पर ये टेबल इंसर्ट किया, तो ये मेरे पास एक क्या हो गया? लेआउट बन गया, ठीक है। तो देखिए जब मैं इस पे काम कंप्लीट कर लूंगी ऑटोमेटिकली इस फील्ड में चली जाऊंगी, यहाँ पे कंप्लीट करूंगी इसमें, या इस तरह रो वाइज या कॉलम वाइज में ऑटोमेटिकली आगे पीछे होती रहूंगी। तो ये हमारे पास एक लेआउट सामने आ गया। अब यहाँ पर इसी लेआउट की बात हो रही है कि लेआउट कितनी तरह के होते हैं। एक फ्लो लेआउट होता है। फ्लो में क्या होता है कि देखिए फ्लो लेआउट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ना, तो यहाँ पर ये जब कंप्लीट हो जाएगी ये लाइन, या यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, उस टेबल को छोड़कर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखने के बाद ये एक फ्लो कंप्लीट हो गई, मेरी एक लाइन कंप्लीट होगी, दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसका मतलब है एक लेआउट कंप्लीट हो गई, ऑटोमेटिकली वो दूसरी लाइन में चला गया, इसका मतलब एक फ्लो कंप्लीट हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास फ्लो लेआउट हो गया। अब अगर मैं बात करूं ग्रिड की, तो ग्रिड किसको कहते हैं? ग्रिड जो हमारे पास देखें लाइंस पे बनी, एक लाइन दूसरी लाइन बनी हो, तीसरी लाइन, यानी एक यहाँ पे मे बी इसकी पिक्चर दी हो, तो हम इसको देख लेते हैं कि ग्रिड लेआउट की दी हुई है या नहीं दी हुई। तो ये देखिए हमारे पास ग्रिड लेआउट है, ठीक है। ग्रिड लेआउट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो पेज होता है या एक लाइन होती है वो खत्म होने के बाद, या एक बॉक्स खत्म होने के बाद जो है वो दूसरा बॉक्स शुरू हो जाता है, दूसरा बॉक्स जो खत्म होने के बाद तीसरा बॉक्स शुरू हो जाता है। इस तरह से हमारे पास आउटपुट होता है, ये ग्रिड लेआउट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास आउटपुट ग्रिड लेआउट का दिया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, यानी एक पे काम किया ऑटोमेटिकली सेकंड पे जाएगा, सेकंड पे काम करने के बाद ऑटोमेटिकली थर्ड पे जाएगा, थर्ड पे काम करने के बाद ऑटोमेटिकली फोर्थ पे जाएगा। तो ये हमारे पास होता है ग्रिड। और फ्लो का देखें, ये एक लाइन कंप्लीट हुई तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली चला गया, दूसरी लाइन कंप्लीट हुई तो तीसरे पे ऑटोमेटिकली चला गया। तो ये फ्लो लेआउट होता है। फिर अगर हम बात करें बॉर्डर लेआउट की, तो बॉर्डर लेआउट हमारे पास कौन सा होता है? यानी हमारे पास ऊपर ऐसे टॉप का बॉर्डर बना होगा, ठीक है। लाइक इसी पे मैं बात कर लेती हूँ, तो ये देखें यहाँ पर अगर मैं ऊपर एक बॉर्डर बना लेती हूँ टॉप पे, ठीक है, बॉर्डर देने के बाद मैं नीचे काम सारा करती हूँ, तो क्या हो जाएगा? उसको हम बॉर्डर लेआउट कहेंगे। यानी बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो नीचे फ्लो करेगा, फिर वो नीचे जब काम कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली नीचे फ्लो करेगा, तो वो बॉर्डर लेआउट हो जाता है हमारे पास। फिर है हमारे पास बॉक्स लेआउट। बॉक्स लेआउट कौन सा होता है? यानी जिसके ऐसे बॉक्स बना हो, ठीक है, टेबल बना हो, और इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड सारे जो है वो साइड जो उसकी फिक्स होती हो। तो आपके हैंडआउट्स में CS 506 में जो फर्स्ट 1 2 3 4 ये जो 4 हैं, इन 4 को डिस्कस किया हुआ, जो मैंने आपको इसी तरह से बता दिया। अब इसको करने के लिए देखिए इन्होंने पहला फ्लो लेआउट बताया है। तो फ्लो लेआउट के लिए आपने क्या करना है? आपने इसमें जो है वो एक ही फ्लो में आपने सारे बटन्स बता देने के, पहले ये शीट हो, दूसरी ये हो, तीसरी ये हो, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह का लेआउट आएगा। सेकंड आपने कौन सा बताया ना फ्लो लेआउट के बाद? यहाँ पर ग्रिड है, ग्रिड लेआउट, फिर उसको जो है वो शो करवाया गया। लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट है वो आपने इस कोड को याद रखना है कि ये वाला जो हमने फंक्शन यूज करना है। फिर उसके बाद है बॉर्डर लेआउट। तो बॉर्डर में देखिए हमारे पास ऊपर टॉप पे नॉर्थ है, साइड पे वेस्ट, ईस्ट, सेंटर और साउथ है। तो ये डिवाइड किया हुआ है 4 फिगर्स के अंदर, इसको 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एरियाज को। फिर आपने इसमें आप जब एक को ऐड करोगे तो दूसरे की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाओगे, दूसरे को फिल करोगे तो फिर तीसरे को, अगर किसी एक को भी आप छोड़ते तो आपका जो है वो वर्क कंप्लीट नहीं होता, यानी सबको कंप्लीट करना है। तो ये ग्रिड लेआउट हो गया हमारे पास। ग्रिड लेआउट के लिए ये देखिए सारा कोडिंग की हुई, आप इस कोडिंग को वर्किंग फॉर्म में अगर देखना चाहते हो LMS से डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद है मेकिंग कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक कॉम्प्लेक्स जो है फुली जो बनाना होगा तो उसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए अब बात तो यहाँ पर हो जाती है कि हमने ग्रिड लाइन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया या इस तरह, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इसमें सारी चीजें मिक्स बना रहे हैं। लाइक वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो होगा ही, लेकिन उसमें हम बटन्स भी रख रहे हैं, लेफ्ट राइट भी कर रहे हैं, टॉप बॉर्डर भी होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी इन सबको अलग अलग से एक्सप्लेन किया गया था ना। यहाँ पे देखिए बॉर्डर लेआउट को अलग से एक्सप्लेन किया गया था, फिर उससे पहले ग्रिड को एक्सप्लेन किया गया था। इसी तरह अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा पैनल बने हमारे पास, एक ऐसा व्यू बने जिसमें बॉर्डर भी हो, उसमें नेक्स्ट और लेफ्ट राइट भी हो, ग्रिड भी हो, सारा इंक्लूड हो। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जावा में उसको किसकी हेल्प से करेंगे? जे पैनल की हेल्प से करेंगे। वेरी सिंपल। जब जे पैनल की हेल्प से आप करोगे तो आपने क्या करना है? आपने ये वाला जो है वो ऊपर क्रिएट करने के लिए ये वाला ऊपर कोड यूज करना है कि जे पैनल हमने करना है, न्यू फ्लो लेआउट या कुछ भी आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब ऐड करोगे जे पैनल की हेल्प से तो आपका काम क्या होगा? स्मूथली काम होगा, यानी सारे काम एक साथ कर सकते हो। आप चाहे लेफ्ट रखो, आप चाहे राइट रखो, तो आपका कैलकुलेटर जो आप बनाओगे तो इसमें आपका ये फायदा होगा कि आप लोग सारी चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।